गुड ओके। इवनिंग एवरीवन। आज डेयर पे हमारे साथ बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुफल सूद शिमला से हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी इश्यूज, जो कि कोविड के बाद और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि आफ्टर कोविड जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो वीक हो गए हैं। कफ बहुत कॉमन हो चुकी है जो जल्दी से ठीक भी नहीं हो रही। तो सर हमारे साथ आज इसी टॉपिक पर रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप सर से पूछ सकते हैं, पर एक बार पहले सर को सुनना जरूरी है, अपनी क्वेरीज नोट करना। देन आफ्टर द सेशन आप कैसी भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। वेलकम सर। Welcome, friends and colleagues. Thanks for sparing your valuable time to listen to this old school dude like me. You're all equipped with lots of material Vedkas, latest and very good stock of repertories. State of art they are. And I must admit that I have heard some of the names for the very first time in my life. But still, uh, I'll try to cope up with my limited knowledge and my limited repertory knowledge as I have got. So originally we were to discuss post-COVID problems, and our dear Dr. Promila made the topic more vast and included respiratory system infections as well. See, this is such a vast subject. It's absolutely not possible to sum it up, to do justice with it in just one session. Somehow, I'll confine myself to some medicines which have been of use in my hands as a humble practitioner of homeopathy. At the outset, मुझे ये कहना चाहिए कि क्योंकि मैं शिमला में रहता हूँ, यहाँ का क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, डस्ट, ह्यूमिडिटी आप यहाँ लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उससे बहुत कम है। और इसलिए मेरी अप्रोच और आपके अप्रोच में शायद कुछ फर्क हो सकता है। और जो भी मैं सबमिट करूं उसको आप इक्वली इफेक्टिव मत लीजिएगा कि सबके लिए वो सत्य हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूँ लुधियाना की, पंजाब की, दूसरे जगहों की आबो हवा, एटमॉस्फेरिक जो है वो बिल्कुल अलग है। और शायद जो मेडिसिन मेरे पास इफेक्टिव हो आपके पास उतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन फिर भी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। लेट अस फॉर सेक ऑफ ईज डिवाइड अवर टॉपिक इनटू टू पार्ट्स नाउ. Firstly, let's talk about some effective medicines for post-COVID problems and then some useful medicines for respiratory system infections. So, as for part one, all of us are aware that post-COVID respiratory and circulatory problems are a chronic nature. And to my mind, we have got to go to miasmatic treatments or depend on nosodes for the same. As most of the problems are due to thickening of vessels, whether they are blood vessels or they are our bronchi, we can look forward for psychotic miasm in these remedies. Personally speaking, I have tried the following, of which I use just one dose in 200 dilutions to begin with and repeat after 2 weeks. Indicated medicines, whatever they are, I use about 2 3 hours after the initial dose in acute cases, and in the chronic cases, I just give the antipsychotic or anti-miasmatic medicine, I should say, and start my treatment from the next day. For me, the first and foremost medicine that has been used by me is Basilinum, which I use in 200 potency. And I almost every time I start treatment with it. शायद इसलिए कि जहां मैं रहता हूं हमारे हिमाचल में ट्यूबरकुलोसिस की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। हर फैमिली में आपको ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री मिल जाएगी। और बेसिलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलर मियाज्म को, अगर मैं कहूं तो, इरेडिकेट करने में इनिशियली बहुत मदद करती है। और कम से कम जहां ट्यूबरकुलर मियाज्म मुझे लगता है कि फैमिली हिस्ट्री है, वहां पर जैसे हम कई बार सिम्टम्स ओपन करने के लिए सल्फर 30 यूज करते हैं, मैं बेसिलिनम 200 यूज करता हूँ इन केसेस में। और मैं बेसिलिनम 200 जो है ये, अब वैसे भी अगर आप मेडिने मेडिका देखें तो it is specially indicated for lungs of old people with chronic catarrhal conditions.
This is very specific about it. And poor pulmonary circulation. These two conditions are mostly prevalent in post-COVID cases with respiratory infections. That is why, without bothering for the Similimum in the first place, I always invariably try Bacillinium 200 as the first resort. And I have noticed for Bacillinium, many times patients, they present themselves with ringworm-like symptoms on their skin. जैसे रिंगवर्म होता है वैसा उनके स्किन पर कहीं कहीं मुझे अक्सर वो देखने को मिले, लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें कोई खारिश, कोई दर्द, कोई एक्सीडेंस नहीं थी, खाली एक रिंगवर्म, वो भी चारों तरफ रिंग बना हुआ है और बीच में बिल्कुल खाली. तो दैट इज अ शॉर्ट इंडिकेशन फॉर बेसिलिनम एंड इट विल हेल्प यू आउट देयर. दूसरी जो मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेडोरिनम है 200 एज इंटरकरेंट रेमेडी. कभी इससे स्टार्ट नहीं किया मैंने, लेकिन चौथे या पांचवें दिन अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई साइकोटिक है, कुछ है, तो मैं एक डोज 200 में डोज दे देता हूँ और इससे केस बिल्कुल क्लियर हो जाता है और मुझे आगे ट्रीट करने में मदद मिलती है. पूजा हम सब जानते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर भी क्योंकि हमारे पास जो मरीज आते हैं कोविड के, जिनमें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली दे आर सो बैडली मेडिकेटेड. इतना उन्होंने सारे दुनिया भर के डेक्सामेथासोन ये वो सब कुछ खाया हुआ होता है. तो मुझे कभी कभी हफ्ते 10 दिन बाद आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि कुछ अड़ रहा है, और अगर मुझे उनमें बैड मेडिकेशन की हिस्ट्री मिलती है तो हमेशा थूजा 200 एक डोज में उनको दे देता हूँ, अगले दिन से बाकी मेडिसिन शुरू करता हूँ. उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे. और एक जो मेडिसिन मुझे सजेस्ट हुई है सिफिलिनम, ये खास तौर पर तब है जब हम देखेंगे डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो चुके हैं. विंड पाइप जो है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू टच. हाथ लगाओ, पेशेंट चिल्लाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ पर मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है. और फिर एक इसमें बड़ी जो इसकी बात सिफिलिनम में है, पेन फ्रॉम बेस ऑफ हार्ट टू एपेक्स. हम लोग अक्सर इसको कहीं इसको रेफर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन इट इज अ पेन क्वाइट टॉलरेबल. लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पेट से लेके ना जो ऊपर तक दर्द होती है, और उनको स्पेसिफिक करें तो आप उसको हाथ लगा के दिखा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक होती है जी. तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक अबाउट सिफिलिनम. तो ये 4 मेडिसिन जो हैं मैं आमतौर पर शुरुआत में इस्तेमाल करता हूँ. अब उसके बाद हम आते हैं जो इसमें हम मोस्टली मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूं. इसमें मैंने एस्पिडोस्पर्मा 3x, ये मैं दिन में एस्पिडोस्पर्मा 3x दिन में मैं 3-4 बार पेशेंट को दे रहा हूं ये, और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं. एस्पिडोस्पर्मा के अलावा मैंने जो इस्तेमाल किए हैं, I'm missing out something here. एस्पिडोस्पर्मा के अलावा मैं जो इस्तेमाल किए हैं मेडिसिन, एक मैंने इसमें नाजा ट्रिपोडेंस का रोल देखा है. जैसे सारे वेनम्स में है, आप डेक्सिस में देखेंगे, प्रोटीन में देखेंगे, देयर इज ग्रास्पिंग एट थ्रोट. गला घुटता हुआ सा लगता है पेशेंट को अपना, और गले में कुछ अटक रहा है, चोकिंग महसूस होती है उसको, और इरिटेबल ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी लेकिन बड़ी गुस्सा रहेगा पेशेंट को, अपनी खांसी पर गुस्सा करेगा पेशेंट. और इवन अगर आप इस पेशेंट की एंजियोग्राफी कराएं तो आपको लगेगा कि उसमें अब मिलेगा कि कीजिएगा उसकी आर्टरीज में नैरोनेस आ रही है, और वो नैरोनेस जो है वो स्क्लेरोसिस नहीं है, एथलेमिटस भी नहीं है, लेकिन बस नैरोनेस है. तो ऐसे केसेस में नाजा हैज बीन ऑफ गुड यूज टू मी. देन एक मेडिसिन जो मुझे बहुत फायदे की रही है, दैट हैज बीन नेट्रम सल्फ.
मैं 6x में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, और इसकी मेरे पास इंडिकेशंस जो हमेशा होती हैं कि सवेरे सवेरे पेशेंट 4-5 बजे उठ जाता है और उसको लगता है कि मेरी जो छाती है वो रुक रही है, छाती में आवाजें आ रही हैं, रेटलिंग हो रही है, और जब खांसता है तो उसे अपनी छाती पकड़नी पड़ती है, छाती पकड़ता है। और एक बड़ा जो पिक्यूलियर सिम्टम मैंने नोटिस किया, शायद आपने भी नोटिस किया हो, खांसते वक्त पेशेंट जितनी बार खांसेगा उसके सिर में धमक धमक होती है, एज इफ द कफ इज रिंगिंग इन दी हेड। और पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब खंग छाती भी पकड़नी पड़ती है और सिर में भी धमक होती है। तो फिर दूसरी बात इसमें एक जो मैंने नोटिस की है कि पोस्ट कोविड केसेस में, क्योंकि नेट्रोम सेल्फ की इंडिकेशन ये भी है कि डिलेड रेजोल्यूशन इन न्यूमोनिया, जहां ब्रोंकाई मुझे स्टेथोस्कोप से मैं चेक करता हूं, मुझे लगता है नहीं ब्रोंकाई में व्हीजिंग ज्यादा है, कुछ स्टिफनेस ज्यादा है, कुछ उनका ल्यूमिन कुछ मुझे बढ़ा हुआ लगता है, वहां डेफिनेटली मैं नेट्रम सब 6 ट्राई करता हूं। और इसमें पिकुलियर चीज ये भी है कि हालांकि लीवर मेडिसिन है बेसिकली, लेकिन आपकी छाती के निचले बाएं हिस्से में दर्द होती है, और अक्सर आपको मिलेगा कि ऐसे पेशेंट जो हैं उनको पुरानी इंजरीज का फर्क पड़ा हुआ है। और जो खासतौर से शायद ये झुग्गी झुपड़ी वालों के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि वेट डैम्प सराउंडिंग जो रहते हैं तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। और मैं इसको 6x पोटेंशियल में यूज कर रहा हूँ लुकवार्म वाटर के साथ, दिन में 3-4 बार, और 6 से 7 दिन देने के बाद एक डोज बेसिलम दे करके मेरे केसेस काफी क्लियर हुए हैं। एक और जो मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की है, आई विल शेयर विद यू, इज सेनेगा। आमतौर पर जो सेनेगा का पेशेंट है, आपने शायद नोटिस किया हो, खांसी जितनी भी हो, खांसी के बाद में उसको छींक आती है, कफ दैट एंड्स विद स्नीजिंग ऑफन, छाती में रैटलिंग होगी, छाती की बाहर की जो दीवारें हैं उसको लगता है दुख रही हैं सोने से इनमें, और उसकी आवाज साफ नहीं निकलती है। ऐसा लगता है उसको, अपने आप को लगता है मेरी जो है वोकल कॉर्ड जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और दिस इज रिकॉर्डेड इन इट एज वेल, वोकल कॉर्ड्स आर पार्शियली पैरालाइज्ड। एंड I'm using it in third dilution, Seneca 3, 4 times a day for 3-4 days. Then I follow it with placebo for 7 days or so, and always I close these cases with Bacillin 201 dose. Then a medicine was mentioned to me by Dr. Promila, for which I am thankful to her, Vanadium. I was introduced to this medicine by Dr. Promila Nera. While going through Borix Materia Medica, I was astonished with similarity of symptoms we find in post-COVID cases. I have not used it so far, but the description is a perfect match. अगर मुझे दोबारा कोई इस तरह का पोस्ट कोविड केस आता है, डेफिनेटली मैं बैसिलम 200 देने के बाद एक बार उस पर वेनेडियम जरूर ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अदर सिम्टम्स, फिजिकल डिटेल्स जो बॉरिक मटेरियल मेडिकल वेनेडियम की दी हैं, they cannot be more closer than the post covid cases. So कोशिश करूंगा जब मुझे कभी मौका मिले मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। तो अभी तक मेरे जो मैंने इस्तेमाल की हैं जो मेडिसिन, वो मैं आपसे डिस्कस की, और मैं आई शुडंट क्लेम एंड आई डोंट क्लेम that this is an exhaustive presentation of post-COVID respiratory problems. But I've humbly tried to put my experience for you all with a request to correct me, enlighten me wherever required, and share your experiences as well in this group for mutual benefit, knowledge, and betterment of others. So this is what I had to submit about post-COVID things. And now coming to the second part of our things, as I said earlier, respiratory system infections, it's such a wide subject that it's absolutely difficult to sum up the entire one in just one session. I'm a bit confused towards my approach to this mammoth topic. Somehow, I limit myself to some medicines which have been of use in my humble practice in homeopathy. Broadly speaking, these affections may be in groups, like I have put them, in which I may sound unscientific,
but are being used for sake of clarity and ease of explanation. I have divided into three main groups. One is the most common thing is the cough. Second is asthma, and then the respiratory failure. So far as cough is concerned, it's the most common manifestation of all respiratory infections, as we all know. Amongst numerous medicines indicated of which every one of us is aware, let me list a few with uncommon symptoms, which I have found of use in my practice. First and foremost, I mentioned coccus cacti. Coccus cacti has got constant hawking, लगातार गले में खराश, गले में फाड़ते रहना, साफ करते रहना, और एक म्यूकस इकट्ठी होना, बड़ी गाढ़ी बलगम इकट्ठी होती है, और उसे ऐसा लगता है कि मेरे लेरिंक्स के पीछे कुछ फंसा हुआ है, समथिंग, कोई टुकड़ा फंसा हुआ मेरे लेरिंक्स के पीछे, और म्यूकस इतनी थिक होती है कि अक्सर खांसने के बाद उसको उस म्यूकस की थिक म्यूकस की उल्टी आ जाती है, और इसकी म्यूकस जो है चिपचिपी है, एल्ब्यूमिनस है, और बहुत ज्यादा गाढ़ी है। और इसीलिए शायद जिन बच्चों में मैंने कॉकस कैक्टी इस्तेमाल किए उनमें सबसे ज्यादा मुझे जो सिम्टम मिला है वो ये मिला है कि बच्चा खांसते हुए उठता है, बहुत भीड़ से खांसी करते हुए उठता है, और ठीक ठाक खांसी करने के बाद उल्टी करने के बाद उसको कुछ चैन पड़ती है। और ये मेरी प्रैक्टिस में बहुत काम आई है मुझे। कफ आमतौर पर कॉकस कैक्टी की कफ ये जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं तब शुरू होती है और लगभग सर्दियों तक चलती रहती है। आमतौर पर हम कह लेते हैं कि ये मौसम के बदलने से खांसी हो रही है, लेकिन मौसम बदलने से भी खांसी है। लेकिन अगर उसमें ये सिम्टम्स हैं कि बच्चा या पेशेंट सवेरे 4-5 बजे खांसी करते करते उठता है, उल्टी कर देता है, बहुत गाढ़ा म्यूकस है, टीनेशियस है, एल्ब्यूमिनस है, तो कॉकस कैक्टी शुड बी द फर्स्ट चॉइस। एंड एक इसमें बड़ी बढ़िया बात यह है कि आती है कोल्ड वेदर में, ठंड में ज्यादा होती है, लेकिन इट इज रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड एयर। इसमें एग्रेवेशन पेशेंट को मिलती है गर्म कमरे के अंदर, गर्म चीजों से, गर्म पानी पीने से, गर्म चाय पीने से, गर्म दूध पीने से। तो दिस इज इग्नेशिया ऑफ कफ, आई शुड से। कॉन्ट्राडिक्टरी है, खांसी गर्मी से ठीक होनी चाहिए, लेकिन इसमें गर्मी से खराब होती है और सर्दी से अच्छी होती है। दूसरी जो मेडिसिन मेरे इस्तेमाल में आई है वो रही है एरिलिया रेसिमोसा। एरिलिया रेसिमोसा इसकी बड़ी करेक्टरिस्टिक चीज जो मेरे साथ मुझे नोटिस की है कि सोने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद पेशेंट ऐसे उठता है जैसे गले में कुछ अटक गया है, देयर इज अ फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट, और उठेगा, खांसी करेगा, वो फॉरेन बॉडी निकलेगी नहीं, लेकिन खांसी करता रहेगा, एंड देयर इज ऑलमोस्ट ड्राई कफ। एंड देन इसमें बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, नाक बहता है, और नाक जो है वो जो बहता है, आई एम सॉरी टू से, उसका एसिडिक टेस्ट होता है जो नाक से निकलता है, और वो छीलता हुआ निकलता है, जो आमतौर पर हम इलियम सीपा देखते हैं। ये इलियम सीपा की अगर कफ भी साथ में है और करेक्टरिस्टिकली पेशेंट सोने के थोड़ी देर बाद उठ जाता है, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास सवेरे, तो वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिलिया रेसिमोसा। एंड मैं इसको भी 6 एडिशन में यूज करता हूँ, दिन में 3 बार, और बड़े अच्छे रिजल्ट मुझे इससे मिलते हैं। एक मेडिसिन जो मैं वर्थ मेंशनिंग समझता हूँ, इट इज कोरेलियम रूब्रम। कोरेलियम रूब्रम की ड्राई दौरों में खांसी आती है, लेकिन इसके दौरे कैसे हैं, जैसे रिवॉल्वर से को गोली फायर करता है, ठक 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 ठक, ऐसा आप कोरेलियम रूब्रम में देखेंगे, खांसी आएगी इस तरह से। तो दिस इज टिपिकली कॉल्ड मिनट गन कफ। हर मिनट बाद, हर मिनट में जैसे ठक 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 ऐसे ऐसे खांसी आएगी, तो दिस इज नथिंग एंड नथिंग बट कोरेलियम रूब्रम। डियर फ्रेंड्स, किसी और मेडिसिन में आप ये रूब्रिक नहीं पाएंगे। तो जैसे मतलब ऑटोमेटिक वेपन से गोली चलती है, ऐसी आवाज आती है इसकी। और इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आधे घंटे में मैंने जिसको भी ये सिम्टम्स देखे हैं,
एक डोज देने के बाद आधे घंटे में मैंने रिलीफ उसमें पाया है। तो इसमें 30 डाइल्यूशन में 30th पोटेंशियल में यूज करता हूँ दिन में 3-4 बार। और एक इसमें बच्चों के साथ जो है खांसी तो ऐसी होगी होगी, लेकिन खांसते खांसते उनका सांस उलट जाता है, चेहरा नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, और इतनी ज्यादा खांसी होती है उनको कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर मिनट गन कफ है, मिनट गन शब्द दे रखिए, इट इज एंड नथिंग बट कोरेलिमरूब्रम एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू एज इट डन फॉर मी। तो ये तो कुछ वो मेडिसिन थी जो मेरे अपने इस्तेमाल में मैंने लाई हैं। और बाकी जो दुनिया भर की और मेडिसिन हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं। I need not dwell upon belladonna, bryonia, spongia, other medicines like that, sambucus. सबके अपने अपने सिम्टम्स हैं, लेकिन ये जो कुछ मेडिसिन हैं मैं समझता हूँ आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल शायद कम करते हो, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। इनके अलावा आप कोई और स्पेसिफिक मेडिसिन मुझे अगर सजेस्ट कर पाए, दैट विल ऐड टू माय नॉलेज एंड कंफर्ट टू माय पेशेंट्स। अब जहां तक बात है, मैं जैसे आपको अभी कहा सैकड़ों दवाइयां हैं, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है तो मैं सिर्फ उनमें से 5-6 यही छांटी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जहां तक अस्थमा की बात है, हमें सब पता है, सब जानते हैं अस्थमा हमेशा क्रॉनिक है, कोई सडन ऑनसेट कभी होता नहीं है, और मियास्मेटिक डिजीज है। तो अस्थमा के बारे में जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना पसंद करता हूँ। मुझे उस पर पेशेंट में आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, उसकी हैबिट्स, उसकी मेंटल सिम्टम्स, और सब कुछ करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इरिटेटिंग सिम्टम्स हैं वो, प्लस उनके साथ कोई मोडेलिटीज अगर मुझे सूट करती हो, तो उन मोडेलिटीज को ध्यान में रख के और 4-5 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को ध्यान में रख करके उनके हिसाब से प्रिस्क्राइब करता हूँ और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी अभी पिछले कुछ सेशंस जो मैंने आपके देखे हैं, हमारे जो अब नई जनरेशन आ रही है मेंटल सिम्टम्स पर बहुत बहुत ज्यादा जोर दे रही है। एंड अंडरस्टैंड, एक ग्रुप ऑफ थॉट्स हमारे में ऐसा भी है जो सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। सॉरी जेंटलमैन, क्योंकि मैं आई से आई एम एन ओल्ड डूड, आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, और बेसिकली हमारी बाइबल एलेंस की नोट्स रही है। तो मेरी अप्रोच हमेशा ये रहती है कि प्रोमिनेंट 4-5-6 सिम्टम्स अगर एक मेडिसिन में मिल जाए, प्लस अगर मोडेलिटीज भी मिलती हो तो सोने पर सुहागा, एंड इट ऑलवेज हैव वर्कड वंडर्स फॉर मी। और एक चीज आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि अगर 4-5 प्रोमिनेंट सिम्टम्स हम उसके हमें मिल जाते हैं, मोडेलिटीज मिल जाती हैं, तो क्योंकि वो 4-5 प्रोमिनेंट सिम्टम्स सबसे इरिटेटिंग होते हैं जिनसे उसको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए, और जो हम मेडिसिन देते हैं आई हैव रियलाइज लगभग आधे से पौने घंटे में रिलीफ शुरू हो जाता है। दिस इज रॉन्ग टू सजेस्ट कि होम्योपैथी टेक्स टाइम। होम्योपैथी डियर सर क्योर करने में टाइम लेती है, एवरीबडी एग्रीज, लेकिन रिलीफ अगर मेरी मेडिसिन सिलेक्शन ठीक है, इट शुड स्टार्ट इमीडिएटली, एंड इट डज स्टार्ट इमीडिएटली। दिस इज एंड so far as asthma is concerned, I am using tuberculum 200 or blissinum 200 twice monthly, say after 2 weeks, and it increases the recovery rate, reduces the recovery time, and in all cases, this is a very strange observation for me. I don't know whether others have observed it or not, लेकिन 1-2 महीने पेशेंट को ट्रीट करने के बाद मुझे हमेशा काली कार्प के सिम्टम पेशेंट में मिले हैं, और मुझे ऐसा लगा है कि काली कार्प पेशेंट को दी जानी चाहिए। मैं हमेशा 2-1 महीने के बाद अगर सिम्टम्स प्रिस्क्राइब करते हो तो काली कार्प 200 एक डोज दे करके, उस दिन कोई दवाई और नहीं, अगले दिन कोई दवाई नहीं, तीसरे दिन से मैं वापस उसको मेडिसिन जो भी सिलेक्ट की हो उस पर डाल देता हूँ, और काली कार्प हैज ऑलवेज क्लियर्ड अप माय केसेस वेरी एफिशिएंटली। और नोटिस इसमें मैंने ये भी नोटिस किया कि काली कार्प कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो, कहीं ना कहीं आपको काली कार्प के सिम्टम किसी स्टेज पे मिल जाएंगे। So far as respiratory failure is concerned, this problem
has assumed significance, particularly in the post-COVID era, for which my usage has been Aspidus Pharma 6x 3 times daily along with the indicated medicine. I am not using Aspidus Pharma 6x in isolation. सिर्फ वो नहीं दे रहा हूँ. Aspidus Pharma as an additive, और आप ये कहें कि उसको एक असिस्टेंट के तौर पे दे रहा हूँ मैं. जो मेन मेडिसिन है वो तो दे रहा हूँ दिन में 3 बार, अगर 3 बार या 2 बार, वट एवर बी द रेपिटेशन. लेकिन एस्पिडोस फॉर्मा 6x जो है, इट हैज वर्क वंडर फॉर मी. और जहां तक एक्यूट थ्रोइन केसेस की बात है, अक्सर आपको रेस्पिरेटरी फेलियर में, विदाउट गोइंग इनटू द सिम्टम्स, आई मस्ट एडमिट आर्सेनिक एल्बम 30, कार्बोवेज 30, ये कहीं ना कहीं आपको इनकी जरूरत पड़ती है और वो सिम्टोमेटिकली आपको इस्तेमाल करने चाहिए. जहां तक एक्यूट केसेस का मामला है, मैं हमेशा और विदाउट फेल ब्लैटा ओरिएंटलिस टिंचर 6 ड्रॉप्स 1 गिलास गर्म पानी में डाल करके एक एक घूंट पेशेंट को पीने में देता हूं, और लगभग 25 से 30 मिनट में अगर एक्यूट अटैक है वो सबसाइड हो जाता है. इट हैज बीन माय प्रैक्टिस सो फार. डेफिनेटली साथ में अगर पेशेंट को घबराहट ज्यादा है, कोई और टेंशन है, कुछ और है, तो उसके हिसाब से कई बार मुझे एकोनाइट 30 देनी पड़ी है, और एकोनाइट 30 देते ही पेशेंट की जो घबराहट वगैरह है वो तुरंत सबसाइड हो जाती है, एंड ही स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू द रूटीन मेडिसिन. Now, this is I had to say about respiratory diseases and the post-COVID complications. एक मैं आपसे अपना केस जरूर शेयर करना चाहूंगा, which is not otherwise related to the topic today. जब मैं होशियारपुर में था, मेरे पास एक पेशेंट खांसी की तकलीफ लेके आए. बड़ा माथापच्ची के बाद, तब मैं नया नया था, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन घूम फिर के मेरे दिमाग में ब्रेनिया आई, और मैंने ब्रेनिया 30 उसको देनी शुरू की दिन में 3 बार. मैं हैरान रह गया. 5 दिन बाद पेशेंट को जब मैं दोबारा बुलाया हुआ था, वो मेरे पास पेशेंट आई और कही, डॉक्टर साहब ये ब्राइनिया 30 था ठीक है, जो मैंने दवाई दी थी, मैं नाम तो नहीं पता नहीं सी, कि ये दवाई तो ठीक है, लेकिन इसको लेने के बाद मेरे गले में जो गिल्लड़ हो रहा था, मेरी थायराइड बढ़ी हुई थी, वो भी ठीक होना शुरू हो गया. अब आई वॉज सरप्राइज. दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि होम्योपैथी क्योर्स इन एंटायरिटी. मैंने बड़ी हम्बली उसको, बच्ची को ये कहा कि बेटा ऐसा है, अगर तू इस गिल्लड़ के लिए मेरे पास दवाई लेने आती तो मैंने ये दवाई तुझे कभी नहीं दी होती. बाई चांस ये दवाई तेरी खांसी भी ठीक कर रही है, ये भी ठीक कर रही है, अब लग के दवाई महीना भर खा ले बेटा, ये भी ठीक हो जाएगा. एंड टू माई अटर अमेजमेंट, ब्राइनिया 30 ने सिर्फ उसकी खांसी ठीक नहीं की, उसका थायराइडिज्म भी ठीक कर दिया. So this was a personal experience which I am carrying with me. हमेशा मैंने कई बार देखा है, जो इंडिकेटेड मेडिसिन है, अगर उसका सिमिलम हमारा ठीक है, तो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो तो ठीक करती ही है, अक्सर कई पुरानी बीमारियों को भी ठीक करना शुरू करती है, और अल्टीमेटली हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है. दैट इज ऑल आई हैव टू सबमिट टुडे, जेंटलमैन एंड लेडीज. थैंक यू फॉर bearing with me, tolerating me, and now I am open to your questions. If I am able to reply to them properly. Otherwise, I've got a panel of experts with me. मेरे बिहाफ पे मुझे उम्मीद है कि वो मदद कर सकते हैं जवाब देने में. Thank you very very much. थैंक यू सर. आपने वनेडियम को जो इम्पोर्टेंस दी, उसको पढ़ने के लिए टाइम दिया. भाई, नई चीज, अच्छी चीज जहां से मिले ले लेनी चाहिए. वो मेरा एक्सपीरियंस है सर पर्सनल. वनेडियम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. विद एस्पिडो अगर देते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स देती है, खास करके ओल्ड पेशेंट्स में तो बहुत ज्यादा. भाई, इट इज बीन फॉरेन टू मी. मेरे लिए अजनबी चीज थी परसों तक. आपसे जिक्र हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ी. अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, हाय कोई आ जाए मैं देखे देखूं. ठीक है सर. सर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लिए. हाँ जी प्लीज. डॉक्टर दीक्षा और डॉक्टर आकाश प्लीज सामने आएंगे आप. डॉक्टर दीक्षा का तो क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी गिव फ्रीक्वेंट कफ इन चिल्ड्रन एंड रिलीव ऑलवेज बाय नेबुलाइजेशन. बेटा, जो नेबुलाइजेशन से आपको रिलैक्स हो रही है ना कफ, उसमें तो आप डाल रहे हो ना, कुछ स्टीरॉइड्स डाल रहे हो, उसकी वजह से वो हो रही है. आप स्टीरॉइड्स को हटा के देखिए, सिंपल स्टीम देंगे तो शायद ना हो. कफ की रेमेडी फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी. सर रिकरेंट कफ के लिए है बच्चों में. देखिए, बच्चों में एक रिकरेंट कफ होना इतनी बड़ी बात नहीं जितनी आजकल हम बना लेते हैं. हाँ. और एक बड़ा गलत जो चलन चल पड़ा है नेबुलाइजर देने का. बच्चों को रिलीफ तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन आपका पूरा इम्यूनो सिस्टम वो सप्रेस कर देता है.
सप्रेस करता है। The best thing that you can do in such cases is apply anything. विक्स लगाइए, कुछ लगाइए, बच्चे को उसके ऊपर रुई रख दीजिए, बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं हो सकती जो जिसमें गोली अंदर दम जलंदर, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपकी इंडिकेटेड मेडिसिन आपको लगता है कि दिस इज द मेडिसिन इंडिकेटेड, ट्राई इन लोअर पोटेंसी, ट्राई इन फ्रीक्वेंट डोजेस। 2-2 मिनट बाद रिपीट करने से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। 2-2 मिनट बाद रिपीट कीजिए। मैं आपसे एक और अपना केस शेयर करूंगा, हालांकि खांसी के बारे में नहीं है। अभी नई मैंने जॉब ज्वाइन की थी। एक दोस्त के घर से मुझे दोस्त आ गया खुद घर पे बुलाने, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मम्मी की छाती में दर्द हो रहा है। मैंने वहीं खाना छोड़ा और निकल लिया। जाकर के मैं देखता हूँ इसको तो हार्ट अटैक आया हुआ भाई। आई वॉज इल इक्विप्ड, लेकिन उनके पास वो गोल्डन ड्रॉप्स थी, मेरे पास जो अपना मेडिसिन बॉक्स था वो था। आई स्टार्टेड विद एकोनाइट, उनका कुछ टेंशन कम हुई। 2 मिनट बाद मैंने फिर रिपीट की, फिर डॉक्टर साहब दर्द बहुत बढ़ गई है, एक डोज बेलोडोना दी, थोड़ा सा रिलीव हुआ। डॉक्टर साहब हूँ दर्द जड़ी है ना, छाती तो हट के सज्जे पासे आ गई है। मैंने फिर बेलोडोना रिपीट की। मैं 3-3 4-4 मिनट रिपीट करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब उन्हें ना सज्जे पास तो हट के निचले पासे जाती है। 1 मिनट बाद नहीं जी उन्हें फिर उठी आ गई है। I gave Pulstilla 31 dose and the shifting of pain stopped immediately. Thereafter, I gave her Belladonna 30 again, Aconite 30 again. Again, I resorted to Pulstilla. जैसे जैसे एक सिम्टम बदलता जाए, मैं एक दवाई बदलता जाऊं। After about 1.5 hours, डॉक्टर साहब हूं दर्द कुछ ठीक है। I gave her 20 drops of gold drops. मिक्सचर है ठीक है। 20 ड्रॉप्स दी, सो गई, मैं अपने आ गया। शाम को जाकर के उन दिनों में, आई एम टॉकिंग ऑफ 1982, जब इवन ईसीजी वाज ए रेयर थिंग। अब तो आजकल तो हर कुछ है। शाम को हमारे होशियारपुर में डॉक्टर गोयल थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने सारा ईसीजी वगैरह किया जो भी इन दिनों हो सकता था। देन ही कि हाँ जी वाकई मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको ये लगता है कि मैंने एक खुराक दी और उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। नो नो, नेवर गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है आपकी मेडिसिन ठीक है, 2-2 मिनट बाद रिपीट कीजिए, 3-3 मिनट बाद रिपीट कीजिए। लेकिन प्लीज प्लीज डोंट फॉर नेबुलाइजर्स, डोंट फॉर स्टेरॉइड्स। दे सप्रेस द केसेस एंड दे स्पॉइल द केसेस। दिस इज ऑल आई हैव टू से। There was some other question, Dr. Pramila. I suppose I've been able to satisfy them. बिल्कुल बिल्कुल सर आपका ये जो जवाब है ना कि आप रिपीट कीजिए पोटेंसी हाँ को, जी, ये मैं खुद करती हूँ। मैं हाँ जी, डॉक्टर कोची की स्टूडेंट हूँ सर। तो जी जी, मैं सर बैठा के आपने। पास ऐसे केसेस हम देखते थे डीप पैथोलॉजिस्ट के, हम्म, तो वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने कहा ना पहले इंसान को जिंदा रख लो, इलाज बाद यस में कर लेना। उनका यस, पहले यही होता था हाँ कि जी। ये सिंगल डोज और सिमलीमम के चक्कर में पड़ते हो तो वो गलत हो जाता है। मुझे पहले पेशेंट जिंदा चाहिए, वो जिंदा हाँ, रहेगा तो पहले ठीक कर मरीज दूंगा। जिंदा रखो, उसके बाद इलाज करना। हाँ जी जी। देयर वर सम सर अदर एक आया क्वेश्चन। डिस्निया आफ्टर हर्पिस जोस्टर, ये तो बेटा आपको ऐसे ही मिल जाएगा शायद। उसमें आप रेपेट्राइज करोगे तो इसको ऐसे ही उसमें डाल दीजिए, फिजिकल्स में शायद मिल ही जाए आपको। डॉक्टर आकाश जैन, आपने क्वेश्चन पूछा नहीं है कौन सा, बट आपने परमिशन मांगी। आइए सामने आइए और सवाल पूछिए। डिस्निया किसी आफ्टर और हर्पिस डॉक्टर का जोस्टर, भी। डॉक्टर साहब मेरी सिंपल सजेशन ये है, जो इंडिकेटेड मेडिसिन उनकी चल रही हो दैट अपार्ट जो भी लगे, लेकिन एक डोज मेजेरियम 200 की हफ्ते में उनको दे दिया करें। मेजेरियम 200 हैज बीन अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर मी फॉर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हर्पिस जोस्टर। ओके। अब हर्पिस जोस्टर के बाद में हम आमतौर पर क्या करते हैं, सप्रेस डिजीज हो या हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले सल्फर आती है कि सप्रेस डिजीज है, सल्फर दो। सल्फर उसको रिएक्ट तो कर देगा, लेकिन मिजेरियम जो है इट इट अगर मैं कहूं कि जोस्टर बाय इटसेल्फ इज ए मियाज़म, आई एम यूजिंग द वर्ड इन अ वेरी लाइटर सेंस। तो मिजेरियम जो है हर्पिस जोस्टर के आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, whether that is nervous irritation or skin irritation or diseases after herpes zoster, मिजेरियम एक डोज 200 की ट्राई करनी जरूर चाहिए। बहुत बड़ा टिप दिया सर आपने आज। There were some other questions as well. हाँ जी सर।
आकाश तो नहीं आ रहे। किसी और डॉक्टर का कोई सवाल है तो प्लीज कम। डॉक्टर विजय का काकरा है ना, इन्होंने हाथ ऊपर किया है, तो उनको वीडियो चालू करके सामने आने को कहो। ओके, ये आकाश जैन का है कोई सवाल। सर, विच मेडिसिन कैन वी प्रिस्क्राइब ऑफ पेशेंट इज हैविंग कफ, paroxysm after long interval with violent cough, difficult breathing and insomnia like feeling and face gets red? बेटा सामने आके पूछिए। आकाश सामने आ सकते हैं आप? वीडियो ऑन कीजिए। सर इन्होंने सिम्टम लिखे हैं बस कि जी कफ है और लॉन्ग इंटरवल पर है, वायलेंट कफ है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग विद इंसोम्निया लाइक फीलिंग और फेस गेट्स रेड। कफ है और इंसोम्निया है। या अब अभी अभी मैंने इंसोम्निया, क्या अभी भी इंसोम्निया अभी लाइक। मैंने आपको बताया सेनेगा शुड बी द मेडिसिन। ओके, सेनेगा शुड बी द मेडिसिन। कफ है, अप टू लॉन्ग इंटरवल्स है और स्लीप इंटरप्टेड है उससे। Seneca should be the medicine, and in meanwhile, for palliation sake, I must say, patient को immediate relief देना है तो Justicia tincture 6 drops in 1 glass of lukewarm water, आधे घंटे बाद 3-4 बार पी लें, इमीडिएट रिलीफ आ जाएगा उनको। जस्टिशिया टिंचर आपने कभी इस्तेमाल की होगी शायद। जस्टिशिया हैज गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन पैलिएशन। मैंने क्यूरेटिव एक्शन जस्टिशिया का आज तक नहीं देखा है, लेकिन रिलीफ इमीडिएट देती है जस्टिशिया। ठीक है सर। किसी और का सवाल हो तो प्लीज। डॉक्टर विजय आप सामने आ सकते हैं। हेलो। हेलो, वेलकम डॉक्टर हाँ विजय। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी आपका वीडियो नहीं मेरी दिख रहा बेटा। मेरी छोटी सिस्टर है जी और उसको हर्पीज हुआ था 27 जनवरी को। जी जी उसका लेफ्ट साइड फेशियल में हुआ था, ठीक है आईज जी। हाँ पूरा जी लेफ्ट साइड उसका स्वेलो, और उसमें ना उसको बहुत सीवियर हेडेक ठीक है जी लेफ्ट साइड। जी और जो भी मतलब एब्सेस हुए थे सब में से वाटर डिस्चार्ज ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ जी जॉ लाइन में पूरा नमनेस थी, ईयर में बहुत सीवियर पेन, हेडेक जी जी इतना सीवियर और साथ में नमनेस। जी जी तो वो अभी थोड़ा सा सबसाइड हुआ है, लेकिन अब उसको 3 दिन से इतना डिस्निया हो रहा है कि वो लेट नहीं पा रही। बैठ के थोड़ी देर बैठ पाती है, फिर डिस्कम्फर्ट हो जाती है, कहती है ऐसे लग रहा है जैसे छाती पे कुछ बहुत वजन रखा हो, मैं ब्रीथ आउट नहीं कर रही। तो कल इमरजेंसी में रात को उन्होंने डॉक्टर किसी को दिखाया, नेबुलाइज उन्होंने कह दिया। वो स्टेरॉइड था तो वो डर रही थी, लेकिन क्या है कि वो सो ही नहीं पा रही थी, मतलब सारी रात वो बैठी रही, लेट नहीं पा रही। जी 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 अभी नहा कर आई है तो तब भी उसको बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है और पूरा जॉ नम है और सिर में बहुत थ्रोबिंग हेडेक, बहुत थ्रोबिंग हेडेक। उसको स्पाइजीलिया दी, बेलेडोना दी, तो उसको मतलब मेडिसिन से लोगों ने कहा तो होम्योपैथिक लेती रहेगी, इतने सीवियर पेन है। फिर एलोपैथिक में भी लोग जी फिर जी पुश करते हैं ना। नहीं नहीं, मैंने कहा इसमें सभी में मतलब 1 महीना तो लगेगा, हार्पिस सारी तेरी इससे बेटर हो जाएंगी, लेकिन पेन के लिए भी फिर अल्ट्रासेट और गामा पेन ऐसे वो भी लिया उसने। जी 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 और एंटीवायरस भी मतलब सजेस्ट किया उन्होंने, अगर तुम छोड़ दोगे एंटीवायरस लोगे तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी, जी तुम जी ब्लाइंड हो जाओगे। तो इतना मतलब स्ट्रेस कर दिया कि उसको वो भी लेना पड़ा होम्योपैथिक के साथ, वेरी फाइन लेकिन वेरी फाइन। होम्योपैथिक भी लेती रही। डॉक्टर साहब और एज आई अभी सेड इसको, अर्लियर। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। जब वो डॉक्टर ने कह दिया ना कि तुम ब्लाइंड हो जाओगी, तो वो ऐसी बात सुन के बच्चों ने भी कहा मम्मी अगर रोशनी चलेगी आंख की फिर क्या करोगे। हाँ जी हाँ जी तो बहुत डरी हुई है और बहुत ज्यादा उसको सांस फूल रहा है, बहुत ज्यादा। वेरी फाइन अभी डॉक्टर तो आपके इसके बीच में मैं आपको लेट अटेंड कर पाई क्योंकि उसी का फोन आया कि मेरे से बहुत सांस चढ़ रहा है, बात नहीं की जा रही, मतलब तो मैंने कहा देखो आज भगवान के रूप में आप आएंगे सेम प्रॉब्लम को लेके। निजीरियम तो डॉक्टर मैं उसको दे साहब ही दूंगी। और अभी डॉक्टर मेजेरियम को दिखा 200। के आई तो उसने हाँ जी एक्सरे किया है तो उसने बोला लंग्स ठीक है, जी ऑक्सीजन लेवल 87 है। जी 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 हाँ जी, तो डॉक्टर साहब एज कुछ एन सजेस्ट एज कर। एन इमीडिएट मेजर
हाँ जी, मेजिरियम 200 तो आप जब देंगे दे दीजिए। मेफाइटिस, ग्रेफाइटिस मेफाइटिस 30, मेफाइटिस MEPHITES मेफाइटिस, ग्रेफाइटिस ना, मेफाइटिस डॉक्टर मेफ साहब, MEPHI M फॉर मनी, अच्छा, मेफाइटिस। मेफाइटिस, नेफाइटिस, यस मेफाइटिस। ठीक है जी, प्रेफरेबली इन मदर टिंचर और इफ नॉट पॉसिबल 6, अच्छा जी, मिक्स इट विद से अगर टिंचर मिलती है मेफाइटिस की आपको, हाँ जी, अगर आपको मेफाइटिस टिंचर मिल जाए तो मेफाइटिस टिंचर और जस्टिशिया टिंचर, ये अच्छा जी। 6 बूंदे 1 गिलास गर्म पानी में डाल के उसको 5-5 मिनट बाद पिलाइए। डॉक्टर साहब, इस पे आप लिख देते हैं जो चैट बॉक्स में। आप मैं बोलिए कोशिश करता हूँ। मेफाइटिस। अच्छा, मेफाइटिस देख ले, इसको भी मदर टिंचर में लेना है। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, और जस्टिशिया भी मदर टिंचर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वैसे तो दोनों। हाँ, मैं जो पुराने केसेस जोन में मैं मेफाइटिस 6 यूज करता हूँ। अच्छा लेकिन जी, आपने जो मुझे बताया, मुझे लगता है कि मेफाइटिस टिंचर ज्यादा बेटर रहेगी। अच्छा जी, दोनों मेफाइटिस को मिला देना है। टिंचर, यस, दोनों को 6-6 बूंदे 1 गिलास गर्म पानी में मिलाइए, उस हाँ जी, बच्ची को 5-5 मिनट बाद पिलाइए। अच्छा जी, ठीक है, और मेजेरियम 200 तो 1 डोज आप दे ही दीजिएगा उनको। ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। और एस्प्यूटीडा तो नहीं देने की जरूरत पड़ेगी? ऐसे फीडबैक क्यों देनी है हमने उनको? ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है ना। डॉक्टर साहब, अगर उसकी रेस्पिरेशन ठीक आ जाती है, हाँ जी, रेस्पिरेशन ठीक आ तो जाती है, मेफाइटिस जस्टिशिया, उसको 1 घंटे में उसकी रेस्पिरेशन ठीक हो जानी चाहिए, तो हमें अच्छा एस्पिरिन की जी, जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, और अगर ठीक है। अगर टच वुड नहीं होता है, तो ऐसा हाँ फीडबैक जी, की बजाय आप कार्बोवेज ट्राई कीजिए, कार्बोवेज 6। कार्बोवेज मैंने उसको बोला है, कार्बोवेज 200 मैंने कल उसको भेजा दोस्तों भी नहीं, है। दोस्तों नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, व्हेन द सिम्टम्स आर ऑफ मोर ऑफ अ फिजिकल नेचर, हाँ जी, मेरा हमेशा ये रहा कि अगर तो मुझे बड़ा अच्छा स्टिमुलम मिलता है तो मैं हायर पोटेंशियल्स पे जाता हूँ, अच्छा बड़ा जी, अच्छा स्टिमुलम नहीं मिलता है तो आई विल ऑलवेज यूज लोअर पोटेंशियल। 6th और 30th इज द लिमिट फॉर मी। अच्छा जी, तो ठीक है, दैट्स तो जस्टिशिया और मेफाइटिस शुड डू। अच्छा जी, अदरवाइज एसोफिटिस के से पहले कार्बोवेज 6 उसको 2 डोज जरूर दे के देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक और है, जो आपने मिजीरियम बोले वो 200 की एक डोज देनी है? हाँ जी, 1 डोज, और नॉट टू बी रिपीटेड बिफोर 1 वीक। अच्छा जी, ठीक है, हफ्ते से 1 हफ्ते से पहले रिपीट नहीं करनी है उसको। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है अभी ना ना जी? उसके सिर में सबसे बाद में हुए थे, और जो हाँ हाँ, सिर में हो रहे हैं ना, हाँ जी, मतलब अभी एब्सेस वो सारे उसमें लीकेज है अभी, और ऐसा उनमें है, बहुत पेन है। ऐसा है बाकी इमीडिएटली। फेस के सबसाइड हो गए हैं। अब इस ऐसा देखिए, हमारे पास 2 इश्यूज हैं। नंबर हाँ 1, जी, मेरा पेशेंट जो है, शी इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हाँ जी, पहली हाँ चीज, जी, मुझे उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव करनी है, तब हाँ पेशेंट मेरा जी, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, these ठीक है, these eruptions, herpes, this is secondary for me at present. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, once the respiratory distress is relieved, हाँ मेजिरियम जी, 200 दे करके एक मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ, मैग्नीशिया म्यूर। अच्छा जी, मैग्नीशिया म्यूर 30, हाँ जी, ये आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाँ मेजिरियम जी, 200 दे करके मैग्नीशिया म्यूर 30, ये दिन में 2 बार, सवेरे शाम 4-4 गोलियां दीजिए। अच्छा जी, और अप्लाई करने के लिए सिंपल गर्म पानी से साफ कीजिए, और हाँ जी। कैलेंडुला टिंचर का सिरेट बना करके वो अप्लाई कीजिए, और कुछ नहीं अप्लाई करेंगे आप। अच्छा, अभी तो मैंने उसको बोला था क्योंकि बर्निंग बहुत ज्यादा थी, हम्म। तो मैंने उसको बोला चंदन का लेप कर लो बस। भाई, चंदन का लेप कितनी देर तक रहेगा? हाँ जी, आप, हाँ, अगर बर्निंग ज्यादा है, यू कैन हाँ यूज जी, स्पिरिट, स्पिरिट से साफ कर लीजिए, स्पिरिट इमीडिएटली काम डाउन कर देगी उसको। अच्छा जी, तो फौरन ठंड पड़ जाएगी ना स्पिरिट से। डाइल्यूट डाइल्यूट करके। नो, स्पिरिट एज इट इज, अच्छा जी, स्पिरिट एज इट इज यूज कीजिए। हाँ कैलेंडुला जी, भी, अगर आप, आपको लगता है कि कैलेंडुला की जरूरत, ये कैलेंडुला की जरूरत पड़नी चाहिए, कैलेंडुला आप डायरेक्ट भी अनडाइल्यूटेड यूज कीजिए। अच्छा जी, कैलेंडुला टिंचर, हाँ एक्सटर्नल जी, जो आती है वो लगाइए उसके ऊपर। ठीक है जी, लेकिन फॉर मी द फर्स्ट थिंग इज जस्टिशियन मेफाइटिस। आफ्टर इट सबसाइड्स, यू कैन गो फॉर कार्बोवेज, एंड देन यू कैन गो फॉर मेजिरियम 200। और फिर स्किन के लिए अल्टीमेटली आपको शायद मैग्नीशियम म्यूर और कैलेंडुला लेनी चाहिए। बट दैट ठीक, इज
ये कहीं 2-3 हफ्ते बाद आपका केस क्लियर हो पाएगा, वेदर मैग्नीशियम यूर इज रिक्वायर्ड और नॉट। लेकिन एक बार मैग्नीशियम यूर पढ़ लीजिएगा अपने आप ही, ठीक है। है ना जी? डॉक्टर मैं रमन, पेशेंट, मैं आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे देती हूँ, हाँ जी, ठीक है ना। आप अभी के लिए उनको जो इशू आ रहा है उसमें से निकाल के उसके बाद सर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेलकम डियर, ये तो कैन ईश्वर का रूप यू? बन के आ गया आज ओ कि भाई, मतलब उनको पता बहुत। पता नहीं भगवान ने मुझे से क्या क्या करवाना, जो करवाता मैं करता जाता हूँ भाई, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर ओके साहब, डियर, थैंक यू ठीक सो है, मच। वेलकम। कोई और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। डॉक्टर वंदना डॉक्टर सामने वंदना आइए। प्लीज सामने आइए, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं आंसर आता है तो फिर से आप लिखते हो, आप खुद ही सामने आकर पूछें। एक सेकेंड। प्लीज सामने आइएगा। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जैसे मैडम पूछ रहे थे ना कि नेबुलाइजर चालू है, तो उस केसेस में मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो मतलब ये कैसे काम करे, बट मैंने इचिनेशिया दिया है मतलब एज पर द, जैसे वो लोग देते हैं ना नैब में मतलब क्या बोलते हैं साल्ब्यूटामॉल और वो सब, तो उसके इपेटोरियम साल्ब्यूटामॉल, उसकी जगह पे इचिनेशिया मैंने दिया है 7 ड्रॉप्स मतलब वहां पे, और बहुत अच्छा इफेक्ट आया है इचिनेशिया से। तो हाँ, मैंने इचिनेशिया दिया था। I'm thankful. This is not a question. This is suggestion and addition to our knowledge. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आपके जितनी नॉलेज नहीं है मेरे पास, आई एम जस्ट See, अरे यार, ये ज्ञान जो है ना बिखरा पड़ा है, कब कहाँ से कौन सा कण मिल जाएगा किसको पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग मी ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। मैं भी देखता हूँ, कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी एचडीसी ट्राई करूंगा जरूर। ठीक है। आकाश सामने आइएगा। प्लीज सामने आके सवाल पूछिएगा, ऐसे टुकड़ों में मत पूछिएगा। आकाश जैन, अरे अनम्यूट कीजिए अपना। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि बच्चे को ना कफ है, 18 ईयर्स का बच्चा है, उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। कफ ऐसे नहीं है कि फ्रीक्वेंट है या कॉन्टिन्यूस है, जैसे 3-4 घंटे बाद एक बार होगी, जो मैंने पहले जब होती है ना उस टाइम ऐसे होता है कि उसको सांस भी रुक गई, ब्रेन की सप्लाई भी रुक गई, उसका फेस रेड हो जाता है, कान भी रेड हो जाते हैं, एंड दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, थोड़े टाइम के लिए। मतलब म्यूकस ऐसे नहीं है कि कोई एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा निकलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने होम्योपैथिक ट्राई करी तो उससे थोड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा था, अब उसके बोर्ड से तो थोड़ी एंटीबायोटिक भी देनी पड़ी। मेरा ही बेटा है मैम जिसके लिए मैंने मेडिसिन पूछ ली, तो उसी के लिए मतलब स्नेहा सर ने बोली है, तो ये है कि इंसोम्निया लाइक उसको उस टाइम लगता है कि हाँ भी मेरा ब्रेन की सप्लाई रुक गई है, उस बच्चे को ऐसे लगता है उस टाइम ना, टेम्परेरी, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए। Ma'am, I just mentioned Coccus cacti. Have you ever tried it? ओके ओके सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ। Constant hawking with accumulation of thick mucus and cessation of a crumb behind larynx. Mucus is so thick that a bout of cough ends in vomiting. And this mucosis, which is viscid, albuminous, and tenacious, and on first waking, child wake up coughing. So, and the modalities are important. It comes in cold weather, but is relieved by cold drinks and cold air. If it is so, Coccus cacti should be your medicine. Okay, sir, but And with then cold and with sore things like sauces, it gets aggravated. with the With like acidic things like sauces or sir, like Mhm, मतलब उनके साथ वो कफ एग्रावेट हो जाती है, कुछ खट्टा खाने से या कुछ mhm, ठंडा खाने से ऐसे। mhm. Do you need any other indication for Pulsatilla? Have you ever tried it? Pulsatilla, sir, I have not tried. I'll try. But have you gone through Pulsatilla where there's a desire for strong strange foods and aggravation from them? My first choice would be Coccus cacti.
Just give Okay, two sir. doses. Just give two Okay. doses, and if relief Okay. doesn't ensue, you can change the medicine. Okay, As I sir. said Okay. earlier, homeopathy में cure takes time, but relief should be instant. पहली Okay. खुराक से पेशेंट को रिलीफ आना चाहिए, तो समझो कि आपकी दवाई ठीक है. Okay. Okay. ठीक Okay. है ना? Yes. Thank you, sir. So very much. Thank you. Welcome. किसी और का कोई सवाल हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड. सर आपका नंबर मांग रहे हैं लोग, आप अगर नंबर बोल देंगे तो, और उसके बाद कॉल्स आनी शुरू होंगी. आप लाइव जा रहे हो सर, सबको पता है. आप देखो अगर लाइव join होने का कर सकते. नुकसान देखिए. बेसिकली प्रमिला जी, मैं यंग जनरेशन से जो मुझे आता है मैं शेयर करना चाहता था. आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. आपने कहा था कि नहीं मैं शेयर करूंगा, कोई सुनेगा नहीं. आप ये देखो कि आपका एक्सपीरियंस कितने लोगों के लिए काम आ रहा है, और आपका नंबर भी मांगा है. इट मीन्स कि आपके पास बहुत कुछ है जो आपको अभी देना है हमको. एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा. बिल्कुल. मेरा नंबर सब लोग ले लें, लेकिन प्रेफरेबली मुझे कॉल कीजिए शाम को 4 और 5 बजे के बीच में. ठीक है सर. मतलब हालांकि कुछ लोगों को भी बुरा लग सकता है, लेकिन नंबर लेने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी मुझे घंटी मार देंगे. प्लीज बेयर विद मी. शाम को 4 और 5 के बीच में करेंगे तो मैं ठीक से बात कर पाऊंगा. अदरवाइज विद ड्यू अपॉलॉजीज, शायद मैं कभी रूट से बात कर लूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. माय नंबर इज 9418053017. सर इस चीज को एक और तरीके से भी हम रोकते हैं. हाँ जी. सर आप अपनी कंसल्टेशन रखिए 2000, आपकी आधे से ज्यादा कॉल्स कम हो जाती हैं. मैम ऐसा है, बाय ऑलमाइटीज ग्रेस मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है. सर वो बात नहीं है, लेकिन जो अननेसेसरी कॉल्स हमारे पास आते हैं बहुत सारे आते हैं. जैसे मैं काफी लाइव रहती हूँ, मेरे कुछ वीडियोस भी जाते हैं हमारे, जी जी तो जी. नंबर बहुत जगह जाता है हमारा. तो उसको रोकने का एक तरीका है कि अब सिर्फ जेन्युइन कॉल्स आएंगी आपके पास, जिसको चलो सच में अगर जरूरत है. वहां पे आप जब बात करते हो उसके बाद आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक बार जब एक बैरियर क्रिएट कर देते हो लोगों के लिए, उसके बाद बहुत बहुत चीजें ये रुकती हैं हमारी. चलो ये मेरा देखता हूँ. पर्सनल एक्सपीरियंस है सर. अगर अगर जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली मैं भी 2000 रुपये लेना शुरू कर दूंगा. ठीक है. नहीं तो 4 से 5 बजे तो ट्रैफिक जाम होना है. ये होगा ही होगा सर. चलो होपफुली ऐसा है प्रमिला जी, आई मे साउंड अ बिट अनयूजुअल, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पास अब 5 साल हैं, 10 साल हैं या 15 साल हैं. जितना मैं जानता हूं, अगर मैं आगे बांट जाऊं तो मेरे लिए ही बड़ी तसल्ली की बात होगी. थैंक यू सर, ये बहुत जरूरी है, और मेरी हमेशा हर सीनियर से ये रिक्वेस्ट रहती है कि क्योंकि ज्ञान को हमारे देके जाओ सीनियर्स हैं, प्लीज. मैं आपसे पहले ही बात की थी, अपना पूरा केस डिस्कस करेंगे, फिर बोलेंगे मैंने एक दवाई दी थी, उल्लू के पट्टे कौन सी दी थी वो तो शेयर कर ले, किसी और के काम आ जाएगी. वो नहीं शेयर करेंगे. एक दवाई दी थी, अब एक कौन सी दी थी, किस पोटेंशियल में दी थी, क्या रेपिटेशन दिया, वो नहीं बताएंगे. तो व्हाट फॉर? इसका मतलब आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को ग्लैमराइज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हो भाई? बिल्कुल 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 सर. So I am not amongst them. Simply my submission is to all my colleagues, क्योंकि इनसे तो चार्ज नहीं ही करना है मुझे किसी हालत में. जनरल पेशेंट होगा उससे करता रहूंगा बेशक, लेकिन प्लीज 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 कॉल करना है 4 से 5 के बीच में कीजिए. अदरवाइज डोंट से सुफल रूड है. डॉक्टर साहब मैं वो जो मेरी सिस्टर है उसको लाइव आपको दिखा दूं एक बार. व्हाई नॉट? देखिए अभी मत दिखाइएगा डॉक्टर रमन, ये अभी उसको हमारा बोल दो मैं सेशन. ज्वाइन कर ले आपको, क्योंकि अभी नहीं जी बहुत नहीं, प्रॉब्लम है. सॉरी और डॉक्टर साहब सॉरी ऑनलाइन है, डॉक्टर साहब सर, ऑनलाइन है इसलिए. सॉरी डॉक्टर रमन, अभी हम जूम पर हैं, हमारे साथ और डॉक्टर्स भी हैं, तो आफ्टर द सेशन आप सर से अपॉइंटमेंट लेके कीजिएगा बात. वेल फ्रेंड्स, इट्स ऑलमोस्ट 6. आई थिंक मुझे आपसे इजाजत लेनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. आपके साथ बहुत अच्छा भी लगा, और नई चीजें भी सुनी, एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हम सही रास्ते पर हैं. I am thankful to you, Pramila, and other थैंक people. यू. गॉड ब्लेस यू सर. Sir, God has already blessed me. Thank God. बिल्कुल And it gives you a sense of achievement कि आप अपने ग्रुप के, अपने सिस्टम के, अपनी पैथी कुछ काम आ सकते हैं. Thank you very much for giving me the opportunity.
Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you and goodbye. Bye bye. Thank you again, sir.